हेलो नमस्कार। खुश रहो बच्चों। आई एम जेबीएन डॉक्टर शाहनवाज आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे we discuss about most important concept of dispersion. Today topic is mean deviation. Mean deviation or average deviation is the deviation of all separate score of the series. Take from their mean and occasionally from median or more. The range and quartile deviations do not take into account the deviation from central value. The mean deviation considers these different in absolute values. Computations of mean deviations for ungrouped data, that is the individual data, is mean deviation from mean equal to summations and module x minus x bar. Here x is the any observation x1, x2, x3, x4 and so on, and x bar is the mean and n is the number of observations. Here we can also calculate the mean deviation with the help of median. A first formula of mean deviation with the help of mean, and second formula we can also calculate the mean deviation with the help of median. Here x is the observation, different observation x1, x2, x3 and x4 and so on, and this is the median, n for number of observations. We can also calculate the mean deviation with the help of mode. We just replace mode in the place of median or means. Mean deviation equal to summation of x minus mode divided by n, where we also discuss about the what is the n. N is the number of the observations. But in discrete series and continuous series, nature of capital N will be changed, where mean deviations on discrete or continuous series, mean deviation from mean is summation f x minus x bar. ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, क्या चेंजेज हो रहा है, यहाँ चेंजेज फ्रीक्वेंसी मल्टीपल, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल सीरीज में क्या फ्रीक्वेंसी नहीं था और इसमें फ्रीक्वेंसी है, तो हम फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखिए एन जो था कैपिटल एन, एक कैपिटल एन इंडिविजुअल सीरीज में एक क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था, मगर यहाँ क्या है, एक कैपिटल एन summation of observation, summation of frequency. एक फ्रीक्वेंसी क्या है, जो ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी, दैट मींस सिग्मा एफ। ठीक है, तो ये सिग्मा ये तो एफ है और ये सिग्मा एफ हो गया। ठीक है, तो मीन डिविएशन इसी तरह एफ, उस फॉर्मूला में एफ मल्टीप्लाई कर देंगे और एन को ये समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है, दैट मींस द फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी तरह मोड में एज इट इज होगा, ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सिग्मा एन को जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसमें मानते थे हम, इसमें क्या मान लेंगे, ए सिग्मा एफ मान लेंगे, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मान लेंगे। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। ठीक है, जैसे हमने रेंज में आपको बताया था कि रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अच्छा, एक होता क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट डिविएशन। कोफिशिएंट डिविएशन इट इज ए रेशियो ऑफ मीन deviation and measure from which is deviate are considered
बीइंग रिलेटिव मेजर्स। ये रिलेटिव मेजर क्या है, ओवरऑल मेजर क्या है, कंपाउंड मेजरमेंट क्या है, ये बताता है कोफिशिएंट ऑफ डिविएशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन कंसिडर बीइंग a relative measure of deviation. It is the pure number independent of the unit of measurement of a variable. Hence, it can be used to compare two or more sets of data. It is defined as follows: coefficient of mean deviations divided by mean. अगर मीन से हम निकालेंगे तो मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, जो मीन डिविएशन निकला हुआ है मीन से डिवाइड कर देंगे तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन निकल जाएगा। सेकंड, जैसे हमने मीडियन से भी क्या निकाला था, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन निकाला था, तो हम मीन डिविएशन में मीडियन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन निकल जाएगा। अच्छा, अगर मोड से निकाल रहे हैं तो मीन डिविएशन फ्रॉम मोड डिवाइडेड बाय मोड, वी कैन फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। नाउ यू explain the mean deviation and coefficient of mean deviation with the help of some suitable example. Suppose we take example in individual series. This is the observations. This is the only observation x1, x2, x3, x4, x4, x5 and so on xn ये दिया गया है, इसका वैल्यू दिया गया है। कह रहा है कि कैलकुलेट द मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। ठीक है, ये अरिथमेटिक मीन से निकालना है, यानी आपको मीडियन और मोड से नहीं निकालना है। इसमें मेंशन है कि अरिथमेटिक मीन से निकालना है, तो आपको अरिथमेटिक मीन से ही निकालना है। ठीक है, अदरवाइज आपके आंसर रॉन्ग हो सकते हैं। ये दिया है साइज 10, 40, 80, 70, 30, 62, 55 एंड सो ऑन, ये दिया गया है नंबर। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे कि लिख लेंगे। ये क्या है, नंबर ऑफ साइज, ये साइज है और ये नंबर सीरियल नंबर दिया है 10 दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है। तो ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 हो गया। तो यहाँ सीरियल नंबर से हम पता कर लिया कि 10 हो गया। ठीक है, और इसका साइज ऑफ एक्स क्या है, 10, 40, 80, 70, 30, 62, 55, 66, 72 एंड 25। ठीक है, तो हम डिविएशन निकालने के लिए पहले बता चुके हैं आपको डिविएशन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम तो मीन निकालें, तो ये मीन निकल गया। ठीक है, मीन कितना निकला है, ये समेशन ये क्या है, ये 510 हो गया। ठीक है, x और डिवाइडेड बाई n 10 10 है तो ये 51 हो गया। अब 51 हमारा मीन है। अब मीन से x माइनस ये क्या है, x माइनस x बार, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 10 है, तो अच्छा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 10 है और इसमें 51 माइनस करेंगे, कितना हो गया, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से 51 माइनस करेंगे तो कितना होगा, -41 हुआ ना। मगर हमारा यहाँ देख रहे हैं कि ये x माइनस x बार ये मॉड्यूल में है, तो मॉड्यूल से जब बाहर निकलता है अगर कोई वैल्यू माइनस भी है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ हम लिख देंगे मॉड्यूल माइनस 41 और मॉड्यूल से बाहर निकला तो ये 41 हो गया। ठीक है, अब समझ में आ गया बच्चों कि हमने 41 कैसे लिखा, 10 माइनस 51 किया और 41 लिखा। तो मॉड्यूल में प्लस हो और माइनस हो, मॉड्यूल हटने पे क्या होगा, उसका साइन प्लस ही रहता है, इतना याद रखना। ठीक है, तो 10 माइनस 51 और मॉड्यूल हटा दिया तो 40 हो गया। इसी तरह
यानी सिंपल तरीका क्या है, जब मॉड्यूल से हटने के बाद माइनस प्लस प्लस ही हो जाता है, तो हम क्यों ना लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस कर दें, तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगा। तो हम 51 से 10 को माइनस करें तो 41 हो गया। 51 से 11 माइनस 40 माइनस किया तो 11 हो गया, और 80 से 51 माइनस किया तो 20 हो गया, 70 से 51 माइनस किया तो 19 हो गया। और इसमें कौन बड़ा है, 30 बड़ा है, ये बड़ा है, 51 बड़ा है। 51 से 30 माइनस किया, फिर 61 से 51 माइनस किया, फिर 55 से 51 माइनस किया, 66 से 51 माइनस किया, 72 से 51 माइनस किया, ये हमारा वैल्यू निकल गया। तो हमारा मीन डिविएशन कितना हो गया, हमारा डिविएशन समेशन डी कितना हो गया, सिग्मा डी 198 हो गया। ठीक है, तो हम आपको बता चुके हैं कि मीन डिविएशन क्या होता है। ये ये मीन डिविएशन, तो सिग्मा डी, सिग्मा डी, सिग्मा डी कितना हो गया, समेशन एक्स माइनस एक्स बार मॉड्यूल के अंदर और डिवाइडेड बाई एन। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो हमारा डिविएशन समेशन ऑफ डिविएशन कितना हो गया, 198 हो गया, और डिवाइडेड बाई 10 किया तो 19.8 हमारा मीन डिविएशन निकल गया। अच्छा, इसी तरह हमने क्या कहा था कि मीन डिविएशन हो और कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन निकालना हो, तो मीन डिविएशन से मीन से डिवाइड कर देंगे, मीन डिविएशन को मीन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन निकल जाएगा। तो हमने देखा कि हमारा मीन डिविएशन निकला हुआ है 19.8, और हमारा मीन कितना है, मीन है 51, हमने फाइंड आउट कर रखा है पहले से, तो हम डिवाइड कर देंगे सिंपली और हम हमारा फाइंड आउट हो जाएगा हम 0.39%। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन इतना हो जाएगा। ठीक है, इसे आप चलिए अब कोई ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो डिस्क्रीट सीरीज का हो, जिस यानी इसमें फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन हो और फ्रीक्वेंसी हो, दोनों हो। तो एक्स ऑब्जर्वेशन है और फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, जब आपको पता है मीन कैसे निकलता है डिस्क्रीट सीरीज में, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो हमको मीन निकालने के लिए एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो एक्स हमारे पास है, एफ हमारे पास है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, एफ एक्स निकल जाएगा। तो हमारा ये सिंपली मल्टीप्लाई करने पे एफ एक्स निकल गया। और डिविएशन, तो सबसे पहले हमने कहा था मीन निकालेंगे, और मीन से जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो कितना कैसे डिविएट कर रहा है वो निकालेंगे। तो हमने मीन निकाला, तो मीन कितना हो गया हमारा 5 कितना हो गया, हाँ अच्छा 534 है, 534 है, और हमारा सिग्मा एफ है 45। तो हमने 45 से डिवाइड कर दिया तो हमको एन 11.87 निकल गया। ठीक है, कितना निकला 11.87। और मीन डिवीजन हम सिंपली क्या किया कि मीन डिवीजन हमारा इतना निकला हुआ है। तो मीन डिवीजन हम क्या करेंगे कि जो हमारा हमारा मीन डिविएशन कैसे निकालते हैं, ये डिविएशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो डिविएशन हमने निकाला कि मीन से, मीन हमारा कितना है 11.87। हाँ अच्छा 11.87। तो इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसमें माइनस किया, माइनस किया एक्स माइनस इतना,
11 माइनस, इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा वो 3 माइनस 11 में, अच्छा 11 में 11 से, हाँ तो हमने क्या कहा था, बड़े वाले से छोटे को माइनस करेंगे, तो ये बड़ा है तो ये माइनस किया तो 1.87 हुआ, ये हमारा फाइंड आउट हो गया। अच्छा, अब हमने तो सिंपली डिविएशन निकाल दिया इंडिविजुअल सीरीज से, मगर इसमें फ्रीक्वेंसी है, इस डिविएशन में फ्रीक्वेंसी भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करने पे इतना आ रहा है, तो हम सिंपली कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन कैसे निकालेंगे, ये आ गया 31.98, और हम सिंपली डिवाइड कर देंगे 45 से, क्योंकि हमारा नंबर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना है, तो हमारा मीन डिविएशन निकल जाएगा। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन निकालने के लिए हम जस्ट क्या करेंगे, मीन से डिवाइड कर देंगे, मीन से डिवाइड कर देंगे मीन डिविएशन में, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन निकल जाएगा। इसी तरह हमारा हमारा क्या है कि कंटिन्यूअस सीरीज में ऐसे ही निकल जाएगा कि किसमें आपके नोट्स में दिया गया हुआ है, एक बार पढ़िएगा और कंटिन्यूअस सीरीज में भी कीजिएगा। जैसे कंटिन्यूअस सीरीज में एक एग्जांपल यहाँ है, ठीक है, इसमें भी क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, यहाँ मीन कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स और सिग्मा एफ मीन निकल जाएगा, तब उसके बाद डेविएशन निकालेंगे, डेविएशन निकालने के बाद सिग्मा एफ से डिवाइड कर देंगे, तो आपको आपको फाइंड मीन डेविएशन फाइंड आउट होगा। और मीन हमने इसमें बताया है, तो क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे हो, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, तो हमने इसमें सिर्फ मीन मीन से बता दिया, ठीक है, मगर आप निकालिएगा तो मीडियन से भी निकालिएगा, मोड से भी निकालिएगा, मगर जनरली स्टैटिस्टिशियन मीन डिविएशन मीन से ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कभी कभी मीडियन और मोड से कैलकुलेट करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप मीडियन और मोड से भी कैलकुलेट करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज में होता है, तो ऑब्वियसली इफ पुट कमेंट ऑन द सेशन, आई सॉल्व इट in problem solving sessions. Thank you.